जीवन में फिर एक दिन जोड़ा कि उसके समक्ष में आकर के हम उसके वचन से सुन सके। So first of all, let me give my thanks to my living God who has called me, anointed me and appointed me for this service. सबसे प्रथम मैं अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता जिसने मुझे सेवका के बुलाया, मेरा नियुक्ति किया, मेरा अभिषेक किया और मुझे ठहराया। And all the pastors, teachers, students who are praying for me and from my family. सारे पासवानों का, शिक्षकों का और सारे विद्यार्थियों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। And again, please pray for my family as my wife is not feeling well since many days. She is having back pain. So please pray for her. और अनेक दिनों से मेरी पत्नी अस्वस्थ है, उनको पीठ में बहुत ही दर्द है, इसलिए कृपया आप मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करें। And Justin also is having a problem in the stomach since 4-5 years. So he is also suffering today because of examination. We forced him to go to school. He went and he is suffering with the stomach pain. और जस्टिन के लिए प्रार्थना करते रहे। 4-7 वर्षों से उस बालक के पेट में तकलीफ है, दर्द है। आज भी उसको दर्द था, लेकिन परीक्षा होने के कारण जबरदस्ती हमें उन्हें स्कूल भेजना पड़ा और वो स्कूल में परीक्षा लिखने के लिए गए हैं। And also would like to give my thanks to Brother Samson who is helping me in translation, so God may bless him too. अपने ब्रदर सैमसन का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो संदेश का अनुवाद कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। Please turn our attention to the book of 2 Timothy chapter 4 verse 8. दूसरा तीमुथियुस उसका 4-8 में अपने बाइबल को हम खोलेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4-8। Please somebody can read. 2 Timothy chapter 4 verse 8. So it is written here that in the future there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me but to all those who have loved His appearing. और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ और जब मेरा परमेश्वर मुझे अपने इस धार्मिकता के मुकुट को मुझे पहनाएगा, मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करते हैं, उन सबों को परमेश्वर ये मुकुट देगा। So I made the title of my message is Crown Demands Commitment. और इसीलिए मैंने अपने संदेश का शीर्षक को यूँ बनाया है कि अगर आपको कार्ड चाहिए तो आपको प्रतिबद्ध होना होगा। Crown demands commitment. और मुकुट के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। So before sharing about the crown, because already Paul said that a crown is kept for me, because he is just explaining all his life what happened, after the calling of the meeting with Jesus Christ. He said in a few verses that he said that I am already being poured out as a drink offering, and the time for my departure is close. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. In the future, I am expecting the crown. और इसलिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में अपने जीवन को अधिकांश समय में बिताने के बाद, प्रभु में बिताने के बाद इस बात को कहते थे कि मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है। तब जाकर पौलुस इस बात को कहता है, मैं एक मुकुट की प्रभु से अपेक्षा करता हूँ। We know that all the people in the world, everybody needs the crown. All are after the crown, the glory, not the physical, but there are a lot of things. Even all athletes and people who are secularly playing cricket or whatever it may be, they are also waiting to receive it. अगर आप संसार की ओर दृष्टि करें तो अधिकांश लोगों को आप देखेंगे इस मुकुट के पीछे, इस महिमा के पीछे, हालांकि राजा का वो मुकुट नहीं हो सकता है, लेकिन
चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई राजनीति में हो, चाहे कोई अपने पेशे में हो, हर कोई उस महिमा को, वहावे को और एक मुकुट को हर कोई अपने जीवन में पाने की तमन्ना रखता है। That's okay. For us also, we need the crown. We are also waiting, and God promised one day He will give us the crown. हर कोई मुकुट की तलाश में है। हम भी जो प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा हमसे किया है कि वो एक मुकुट हमको देगा, उस वायदे के मुकुट का इंतजार हम भी कर रहे हैं। I am not going to explain the different types of crown, but just for few minutes, let me say about the commitment today. और बहुत सारे जो मुकुटों के बारे में बाइबल में लिखा गया है, नाना प्रकार के मुकुट तो मैं आज के आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा, उसका बखान मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन एक समर्पण, प्रतिबद्धता के बारे में जरूर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा। Then what is commitment? प्रतिबद्धता क्या है? How we can define the word commitment? एक शब्द जो प्रतिबद्ध है, उस प्रतिबद्धता के शब्द का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? Commitment is a promise to be loyal to someone or something. प्रतिबद्धता वो होती है जो किसी के प्रति दिए हुए वायदे के प्रति आप वफादार होते हैं, उसे निभाने में आप हमेशा आप सचेतता बरतते हैं। Our commitment is a decision to do what needs to be made. प्रतिबद्धता वो होती है या प्रतिबद्धता वो निर्णय होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसका फैसला आप करते हैं। And the dictionary meaning of this word commitment it says that the commitment is an attachment. अगर आप शब्दकोश में इस शब्द के अर्थ को ढूंढना चाहेंगे तो प्रतिबद्धता का अर्थ दिया गया है लगाव, जुड़ाव। It is a dedication. ये समर्पण है And it is a fidelity. और ये विश्वास योग्यता है, ये ईमानदारी है। So if we have the commitment, then we will receive the crown. If we have no commitment, no crown. अगर आपके जीवन में प्रतिबद्धता है तो आप मुकुट को पाएंगे, अगर आपके जीवन में प्रतिबद्धता नहीं है आप मुकुट को नहीं पा सकेंगे। Because really when we study the Bible, we can see in the Bible itself that the commitment has started and begins with the Lord the Father. अगर आप बाइबल को अच्छी तरह से अध्ययन करके पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वास्तव में प्रतिबद्धता हमारे परमेश्वर पिता के द्वारा से शुरू हुआ, उसने प्रतिबद्धता दिखाई। John chapter 3 verse 16. We know that we have memorized, and without looking to the Bible, even we all are ready to say that. यूहन्ना 3:16 हम सबों के लिए परिचित है। अगर आप बाइबल नहीं भी देखेंगे हम में से सब कोई उस आयत को कंठस्थ मुखपाठ बोल सकता है। Will you please say one and more loudly? John 3:16. क्या हम together एक साथ में उच्च स्वर में क्या यूहन्ना का 3:16 बोलेंगे? Yes. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी विश्वास करे नाश ना हो परंतु। Yes, very good. 99% of the students I saw they were speaking and loudly saying the word. 99% लोगों को, विद्यार्थियों को मैंने देखा बड़े उच्च स्वर के साथ चिल्लाते हुए यूहन्ना के 3:16 को बोल रहे थे। And here we can see the commitment of the Lord towards this world and the people of this world. परमेश्वर पिता के इस संसार और संसार के लोगों के प्रतिबद्धता को, उनके प्रति समर्पण को परमेश्वर का देख सकते हैं। Because of the deep love, God has decided to send His only begotten Son to the world. उसके गहरे प्रेम की वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने का निर्णय फैसला किया। God decided to send His Son. परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजने का फैसला किया। The decision was terrible and it was very cruel. ये निर्णय तो बहुत ही भयंकर और ये बहुत ही हिंसक है। Because he decided to send His Son to die. क्योंकि उसने जब अपने बेटे को भेजने का सोचा तो उसने अपने बेटे को मार डालने के लिए भेजा। Because the love inspired Him to send His Son to this world to die for all of us. और उसका प्रेम है जिसके वशीभूत होकर के उस प्रेम के प्रेरणा से
मरने के लिए भेज दिया। God so loved the world and He sent His begotten Son. और लिखा गया है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, So that love inspired Him to send the only begotten Son. उसका वो प्रेम है जिससे वशीभूत होकर, उसका वो प्रेम जिससे प्रेरणा प्राप्त करके प्रभु ने अपने बेटे को दुनिया में हमारे लिए मरने को भेज दिया। And to whom He loved you and me. इसे किससे प्यार किया? उसने आपसे, मुझसे प्रेम किया। And you can see the intensity of His love once. Reverend Nath Vijayanath, he preached very wonderfully about this word, John 3:16. अगर आप उसकी प्रेम की गहराई, उसकी प्रेम के जुनून को अगर आप जानना चाहे, रेवरेंड नाथ ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में यूहन्ना के इसी 3:16 से बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने प्रचार किया। So just want to, if you want to understand the intensity of His love, then you look to the cross of Calvary. अगर आपको परमेश्वर पिता के प्रेम की गहराई और उस प्रेम के जुनून को समझना है, एक बार कलवरी के क्रूस की तरफ अपनी आंखों को उठा करके देखिए। And in front of before the sight of Jesus, God the Father, He was standing there as a sinner. परमेश्वर पिता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, आप परमेश्वर के पिता की दृष्टि में एक पापी के रूप में खड़े थे। And in the middle, only begotten Son. और उसके बीच में उसका एकलौता बेटा। He did not look to His Son, but He looked and watched you. उसने अपने बेटे की तरफ में नहीं देखा, लेकिन उसने आपकी तरफ में दृष्टि करके आपको देखा। You know that He suppose He saved His only Son, only begotten Son, then He cannot save you and me. और उसे ये बात तो मालूम है कि अगर वो अपने इकलौते बेटे को नहीं भेजेगा, अगर उसे मरने नहीं छोड़ेगा, तो आपको और मुझे वो बचा नहीं सकता। So understand the depth of His commitment, God's commitment. परमेश्वर की प्रतिबद्धता की गहराई को समझिए। And it started from the Lord. Started from the Lord. ये परमेश्वर पिता, ये परमेश्वर से शुरू हुआ। And then now today He demands the same commitment. और आज वो प्रेम के उसी कारण से हमसे उसी प्रतिबद्धता की मांग करता है। He demands same commitment to us, the Lord, you are Savior. आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रति आपके उसी समर्पण प्रतिबद्धता को परमेश्वर मांगता है। Let me say some of the requirements for the commitment. प्रतिबद्धता के सिलसिले में क्या आवश्यकताएं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। Number one, पहली बात, the requirements of commitment is faith. Number one. और पहली बात जो इस प्रतिबद्धता में आवश्यक है वो है विश्वास। Or commitment demands faith. या फिर अगर ऐसा कहूं तो और अच्छा रहेगा, प्रतिबद्धता विश्वास की मांग करता है। Number two, दूसरी बात, commitment demands love. प्रतिबद्धता प्रेम की मांग करता है। Number three, तीसरी बात, commitment demands obedience. ये प्रतिबद्धता आज्ञाकारिता का मांग करता है। Number four, चौथी बात, commitment demands the fear of God. ये प्रतिबद्धता परमेश्वर के डर की मांग करता है। Number five, पांचवी बात, commitment demands discipline. प्रतिबद्धता अनुशासन की मांग करता है। Number six, छठवीं बात, commitment demands willingness. ये प्रतिबद्धता स्व इच्छा की मांग करता है। Number seven, सातवीं बात, commitment demands sacrifice ये प्रतिबद्धता कुर्बानी बलिदान की मांग करता है or sufferings. या दुख की मांग करता है। ये commitment demands faith. Without faith, we cannot commit ourselves. We should have a great faith in the Lord Jesus Christ. प्रतिबद्धता में विश्वास की आवश्यकता होती है प्रियो, क्योंकि विश्वास के बिना आप परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं। The best example we can see in the Bible, there is a list written in the Bible, that is the Hebrews chapter 11. अगर आपको सबसे बेहतर उदाहरण अगर बाइबल के अंदर में से चाहिए, सबसे अच्छी सूची अगर मैं बाइबल से आपको देना चाहूं, इब्राहिम की पत्री उसके 11वें अध्याय में विश्वास के वीर योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है। All the servants who live in the Old Testament, they committed their life fully to the Lord. अगर आप इस 11वें अध्याय से विश्वास के अगर सूरमाओं की बात करें, इन सब ने परमेश्वर के
दास होने के नाते अपने अपने जीवन को विश्वास के द्वारा से प्रतिबद्ध किया। Chapter 11 verse says that by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. चौथी आयत में अगर आप देखेंगे, विश्वास से हाबिल ने काइन से अच्छी या ग्रहण योग्य बलिदान प्रभु के लिए अर्पण किया। Verse 5 says that by faith Noah was taken away so that he did not experience और death. विश्वास के द्वारा से हाथ को उठा लिया गया है और वो मृत्यु नहीं देखा। Verse 7 says that by faith Noah, after being found about what was not yet seen, endurance built an ark in deliverance of his family. अगर आप देखें तो नूह के बारे में लिखा हुआ है कि विश्वासी के द्वारा से परमेश्वर ने नूह को यूं नहीं छोड़ा, लेकिन उसे और उसको उसके परिवार को परमेश्वर ने एक जहाज में बचा लिया। By faith Abraham, when he was called, obeyed and went out to a place he was going to receive an inheritance. He went out not knowing where he was going. विश्वासी के द्वारा से अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मानते हुए कि उस देश को निकल चला, ये ना मालूम था कि किधर को जा रहा है, फिर भी वो प्रभु का आज्ञाकारी होते हुए उस देश को चल पड़ा। So all this chapter speaks to the committed people. ये सब अध्याय में लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो प्रतिबद्ध है। And all these dear ones who are totally dedicated, totally committed, and totally attached themselves to the Lord and to His word. अगर आप परमेश्वर के इन दासों को यदि आप देखेंगे तो इनमें से आप सभी को परमेश्वर अपने पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित, जुड़ाव और प्रतिबद्ध होते हुए देख सकते हैं। Not only in the Old Testament, when we come to the New Testament, we can see hundreds of people who committed their life, dedicated their life to serve the Lord Jesus Christ. पुराने नियम ही नहीं, लेकिन अगर आप नए नियम में आकर के देखेंगे तो आपको सभी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के प्रति उन्होंने अपने जीवन को प्रतिबद्ध किया। And even when Jesus was speaking to the disciples, Jesus said that if you want to follow me, leave everything behind you and follow me. और जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था, तब उसने अपने चेलों से ये बात को कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे बोलो। And in those days when people committed, they were totally committed to do the will of God. और उन दिनों में जब लोगों ने परमेश्वर के प्रति समर्पण किया, प्रतिबद्ध किया, वो संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध थे। In their heart, in their mind, no hidden agenda. Everything was open, and the aim of the people was only to serve the Lord, and to preach the gospel to the world. जब वो प्रतिबद्ध हुए तो उनके अंदर में छुपे हुए कोई एजेंडा या छुपे हुई कोई गुप्त बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रति पूरे खुले मन से, खुले रूप से, पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति वो प्रतिबद्ध होकर के उन्होंने काम को किया। We know that whatever things we should commit, we know that we have to commit ourselves to our profession, what we are doing. आप जानते हैं जब आप प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, आप कोई भी पेशे में क्यों ना हो, कोई भी काम को आप क्यों ना करते हो, उस काम में, उस पेशे में अपने आप को आपको पूरी तरह से प्रतिबद्ध करना होता है, तभी वो काम होता है। For example, suppose if a carpenter is working and he is making some furniture, he is totally dedicated and committed to that work, and then we can see a beautiful furniture. अगर आप एक बड़ाई को काम करते हुए देखेंगे, अगर उसके दिलो दिमाग में एक लकड़ी की वस्तु बनाने की अगर दिमाग में है, तो आप देखिए वो बड़ाई पूरी दुनिया को भूल करके पूरी तरह से अपने आप को उस काम में प्रतिबद्ध करता है। अंत में हमें क्या मिलता है? एक खूबसूरत लकड़ी के एक वस्तु को तैयार हम देखते हैं। And if suppose a cook is dedicated to prepare the food totally, then we will have a wonderful tasty food. अगर आप किसी बावर्ची को अगर खाना बनाते हुए देखें, तो बावर्ची को देखिए खाना बनाने में अपने आप को पूरी तरह से प्रतिबद्ध करता है और फलस्वरूप हमें बहुत ही जायकेदार, मजेदार खाना खाने को मिलता है। Commitment to our profession, whatever it may be. हम We should commit ourselves to our local church and to the pastor. अगर हम स्थानीय कलीसिया की बात करें, तो हमारे स्थानीय पास्टरों की बात करें, पूरी तरह से हमें उनके प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। We should have the commitment to the word of God. परमेश्वर के कलाम के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। And we should have the commitment
प्रतिबद्ध होना And we होगा should have a commitment to the gospel. और सुसमाचार के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा To the gospel. सुसमाचार के प्रति I'm really sorry to say, today's in 21st century, I don't know where is the mistake and what is happening. बड़े खेदित मन के साथ में दुखी मन के साथ में मुझे ये बात तो कहना पड़ता है 21वीं शताब्दी में किससे क्या गलती हो गई कहाँ चूक हो गया समझ में नहीं आता In the first century, second century, even up to the 19th century, 20th century, when God called the people, they dedicated their life to see and to preach the gospel and to lift up the name of Jesus Christ everywhere in the world. अगर आप पहली शताब्दी में देखें दूसरी शताब्दी में देखें 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में परमेश्वर ने जिन जिन को बुलाया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाते हुए उसके नाम को ऊंचा उठते हुए उसको महिमा देने का काम वो किया करते हैं But in the 21st century, everything has been changed. लेकिन 21वीं शताब्दी में सब बदल गया In the old time, because of their calling, because of their dedication to the service, and we can see thousands and thousands of believers in the world and thousands of churches in the world. और प्राचीन समय में उन दासों के समर्पण उनके प्रतिबद्धता उन्होंने जो काम को किया उन्होंने जो समाचार को फैलाया उसके फलस्वरूप आज आप दुनिया में हजारों विश्वासियों को हजारों कलीसियाओं को आप देख सकते हैं But in the 21st century, God has called the same calling to the saints with the same heart, same mind. Everything is same, no change with the Lord. But the change is happening in the people. Today we cannot see new churches, establishing new churches, but we can see thousands of schools are the founders of the schools are the pastors or who study in the Bible college and who do BBS or MD or MBS. और आज बाइबल कॉलेज में बीपीएस एमडी में भी है और इससे भी आगे की अगर आप पढ़ाई करना चाहे आपको मकसद ऐसे भवन का निर्माण करना बन गया है If God has called you to establish the school, no problem, you go and do it. परमेश्वर ने कभी आपको एक पाठशाला बनाने का दर्शन दिया बुलाया जाओ स्कूल को बनाओ आप बाइबल कॉलेज में आकर के अपने अनमोल समय को यूं बिता रहे हैं मुझे नहीं पता If you are studying in the Bible college, please, this is my request. You preach the gospel. कृपया करके आप मेरी विनती को सुनिए अगर आप बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं केवल और केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार करो After BTS, after MD, after MBA, many students, after coming out from the college, they joined in different schools and teaching somewhere else. और ऐसे बीपीएस और एमडी और एमटीएस करने के बाद कितने सारे ऐसे विद्यार्थी बाइबल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद स्कूलों को बनाने में और उन स्कूलों में काम करने में अपना जीवन बिता रहे हैं Then just ask to the pastor, the student who is teaching, and even in the Hindu schools, they are teaching in different schools, singing the songs of Sudhigara, Vandara, everything. They are participating and singing and joining in them. They cannot escape from there. And just you ask to the people, what is your experience? Can you sing like the song which Paul sung on the last day? और अगर आप आसमानों से जाकर के पूछेंगे आपके स्कूलों में कौन टीचर पढ़ा रहे हैं अधिकांश पास्टर आपको यही जवाब देंगे बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी तो यहाँ तक आगे निकल गए हैं अन्य जातियों के स्कूलों में जाकर वहाँ पर अध्ययन देते हुए उनके गानों को गीतों को उनके बातों को वो पठन कर रहे हैं गीतों को गा रहे हैं और इसमें वो लिप्त है In the last day, can they say, can this student can say that I have fought the good fight, I have finished my race, I have kept my faith. In the future, God has kept a crown for me. क्या ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे अन्य जातियों में
की है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। I think in the according to our condition, if suppose we say that, we can say that God will say, "Fellow, get out." क्या हम उसी परिवेश में होकर के ये बातों को कह सकते हैं? अगर हम ऐसा कहेंगे, परमेश्वर से यही उत्तर मिलेगा, तू यहाँ से निकल जा बेटा। Teaching in the school, that is not a sin. I did not say that is a sin. मैंने ये नहीं कहा स्कूल में पढ़ाना पाप है, But after leaving the will of God, rejecting the plan of God, and rejecting the calling for what God has called you and appointed you, if you leave that calling behind you and you are going to earn the money and then you lose everything. आप परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को दरकिनार करके, उसे ठुकरा कर, उसे नकार कर, पैसे कमाने के लिए यदि आप ऐसे कामों को करते हैं, आप परमेश्वर की योजना से पूरी तरह से बेदखल हो जाएंगे। Brothers and sisters, let me say that if you are totally committed your life to the Lord Jesus Christ, He will provide everything in your life. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर के प्रति अगर आप प्रतिबद्ध होकर, समर्पित होकर रहेंगे, आपके जीवन के लिए जो भी चाहिए, जो भी आवश्यकता है, प्रभु उसे पूरा करेगा। All the servants of God who are sitting here, I can boldly say that we all are living by faith in the name of Jesus Christ. यहाँ पर जितने भी परमेश्वर के बड़े दास बैठे हैं, मैं हीरों के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस बात को कह सकता हूँ, हम विश्वास से जी रहे हैं। We are not earning a single money in a wrong way anywhere, but we are working hard and we are earning the money and we are living for Jesus Christ. ये पैसा भी हम सेवकाई के बाहर से नहीं कमाते हैं, जो कुछ भी मिलता है विश्वास से प्रभु के सेवा में हमें मिलता है और विश्वास से अपने जीवन को बिता रहे हैं। Brothers, this is my 26th year in the ministry. In the last 26 years, God has never left me alone and He fulfilled all my desires and the needs according to the needs and circumstances. मेरे सेवकाई का ये 26वां साल है। 26 वर्षों में इस सेवा में परमेश्वर ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। मेरी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया। My dear God is very near to me. He can understand my needs and He provided everything. He providing even today everything according to my needs. मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को जानता है, मेरे हर एक जरूरत को जानता है। उसने सब जरूरतों को पूरा किया और मैं जानता हूँ परमेश्वर आगे भी पूरा करेगा। Before coming to this service, I was working in different places. I earned the money, but God called me. I left everything behind. I decided to serve the Lord. इस सेवा में आने से पहले मैं बहुत से काम करता, बहुत पैसे कमाया, लेकिन जैसे सेवा में आया सारे कामों को छोड़ दिया, सिर्फ सेवा में हूँ। Do you think that Reverend Samson cannot earn the money? He supposed he go out and work hard. He will earn more than 25,000 rupees per month he can earn. आपको क्या लगता है रेवरेंड सैमसन पैसा नहीं कमा सकते? अगर यहाँ से बाहर निकले, किसी भी जगह काम करे, 25,000 रुपया महीना कमा सकता है। You ask Reverend Josh, Pastor Felix, Pastor Philip, and Pastor Wilson, Reverend Nar, and even Reverend Nathan, you ask everybody, they can earn the money. What we are getting today, more than that, we can earn from outside. और आप रेवरेंड जोश को, आप पास्टर फिलिप को, पास्टर फेलिक्स को, पास्टर विल्सन और रेवरेंड नार, रेवरेंड जैन, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सेवा के बाहर वे लोग पैसे कमाने में सक्षम हैं, कमा सकते हैं। Dear students, not only because of the dedication, only because of the commitment to the gospel and to Jesus Christ, who has called us, who has appointed us in this service, we are standing and we are preaching from the pulpit. ये भाई और बहनों, केवल परमेश्वर की सेवा, उसकी बात, उसकी आज्ञा को मानकर, समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर, हम आज भी उसके
आपके पास में एक और अवसर है। When I was in Punjab last week, I heard a testimony. पंजाब में जब मैं पिछले सप्ताह में था, मैंने एक गवाही को सुना। When the Pentecostal movement was going around the world, there came a man in Punjab. His name is John Hyde. He lived in Punjab. और जब पंजाब में परमेश्वर के वचन का या पेंटिकोस्टियल आंदोलन चल रहा था, वहां पर जॉन हाइड नामक एक व्यक्ति वहां पर मिशनरी के रूप में आए। He came from England. इंग्लैंड से आए And he and in those days Punjab and Pakistan was together, and they were going here and there. There was no problem in those days. अगर आप उन दिनों की बात करें, पंजाब और पाकिस्तान एक ही था। लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से इधर आते, कोई परेशानी नहीं था। In the beginning, he lived in Sialkot in Punjab. अगर आप पंजाब में देखें तो वो सियालकोट में थे। And then he preached the gospel to everywhere. उसने हर जगह जाकर प्रचार किया। But in Punjab there was no church. He could not find any church in those areas. लेकिन उस पंजाब के उन इलाकों में वो कभी चर्च नहीं बना सके। And he decided to walk in the all over the Punjab. और कोई चर्च नहीं दिखा, पूरे पंजाब में चलने का फैसला किया। And then he came to Patiala. फिर वो पटियाला में आए And he started to pray to the Lord. और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, Lord, give me Punjab. प्रभु मुझे पंजाब दे दे, Lord, give me Punjab. प्रभु मुझे पंजाब दे दे। Every day from the morning to evening he cried out to the Lord, Lord, give me Punjab. सुबह से लेकर शाम तक वो की प्रार्थना करता, प्रभु मुझे पंजाब दे दे। Every day, just like a pagan, just like a madman, he publicly cried out, Lord, give me Punjab, give me Punjab, give me Punjab. एक पागल व्यक्ति के समान सुबह शाम वो यही पुकार के यही कहते, प्रभु मुझे पंजाब दे दे। And he took a rented home once, and he sat down there and started to pray. और एक किराए का मकान लेकर वही प्रार्थना करना शुरू किया। 1904, he died. 1904 में उनका निधन हो गया। Asking Punjab, asking and praying and crying, his body became very thin. और पंजाब को परमेश्वर से मांगते मांगते उनका शरीर बहुत दुबला हो गया। He forgot to take the food and everything. और वो खाना भी भूल गए। He avoided all the worldly pleasures and other things. संसार के कोई भी सुख सुविधा को वो नहीं स्वीकार किए, सब त्याग दिया। All the Punjab was in his heart. और पंजाब उनके दिल में था। And when he was dying, and the doctors came, when the doctor checked, and the doctor said that he is having a great burden in his heart. और जब डॉक्टर लोग आए और उनको इलाज के लिए जब जांच पड़ताल किए, तो उन्होंने कहा इनके दिल में बहुत बड़ा भार है। Brothers, let me say, after his death, God started to move in the Punjab. भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता, उनकी मृत्यु के बाद परमेश्वर पंजाब में काम करना शुरू किया। Today, all over the Punjab, you can see hundreds of churches because of his tears. और उनके आंसुओं की वजह से आज पूरे पंजाब में हजारों कलीसियाएं बन रही हैं। Hundreds of the church. सभी कलीसियाएं बन रही हैं। Thousands of believers are worshiping the Lord. हजारों विश्वासी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। Only one man from outside of India came and cried for India. एक व्यक्ति भारत से बाहर आकर भारत के लिए वो रोया। If John Hyde can change the history of Punjab, अगर जॉन हाइड पंजाब के इतिहास को बदल सकते हैं, you are Indians. हम सब भारतीय हैं। You can change the history of every state. आप भारत के हर एक राज्य को बदल सकते हैं। But you should commit yourself totally and fully to the Lord and to the gospel. आपको संपूर्ण तरीके से समर्पित करते हुए, प्रतिबद्ध होते हुए परमेश्वर के पास आना होगा। You can cheat the leaders who are here, जो अगुवे यहाँ पर है, आप उनको धोखा दे सकते हैं, but you cannot cheat your God who knows your heart. लेकिन वो परमेश्वर जो आपके मन को जानता है, उस परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। Brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, will you please once again dedicate your life to serve the Lord? क्या फिर एक बार आप अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा करने के लिए दोबारा समर्पण प्रतिबद्ध करेंगे? Everybody please close your eyes. सब कोई अपने आंखों को बंद करे। Everybody please close your eyes. सब कोई अपनी आंखों को बंद करे। Will you cry for India? क्या आप भारत के लिए रोएंगे? Will you cry for the perishing souls?
क्या आप नाश होती आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे? Will you take fasting to serve the people? क्या लोगों की सेवा करने के लिए आप उपवास करेंगे? Will you please pray and fast before the Lord to have a ministry? क्या आप परमेश्वर से सेवा को मांगने के लिए प्रभु के सामने उपवास के साथ रोकर प्रार्थना करेंगे? Can you dedicate your life today? क्या आज फिर एक बार आप परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित करेंगे? Your crown is waiting for you. आपका मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। Your crown is waiting for you. आपका मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। Your crown is waiting for you. आपका मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। God has kept a wonderful crown for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक सुंदर मुकुट रखा है। He will honor you. He will exalt you. वो आपका आदर करेगा, आपको ऊंचा He उठाएगा, will bless you, dear friends. आपको आशीषित करेगा प्रिय विद्यार्थियों। But today, will you please commit totally your life totally to the hand of Jesus Christ? क्या आज आप अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे? Forget the world and what the world says about you. ये दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, ये दुनिया क्या कह रही है, भूल जाए। Forget about your friends. आपके मित्रों को भूल जाए, Forget about your family. आपके परिवार को भूल जाए, Forget about your benefits. आपके फायदों को भूल जाए, Forget about your finance. आपके आर्थिक बातों को भूल जाए। And today we need a total commitment and total dedication. आज हमें संपूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता चाहिए। We need today a great commitment today for Jesus Christ. आज प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बड़े प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। Will you please commit and dedicate your life to Jesus Christ? क्या आप अपने जीवन को फिर से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करेंगे, प्रतिबद्ध करेंगे? The field is waiting for you. ये खेत आपका इंतजार कर रहा है। Christ Jesus is waiting for you. यीशु मसीहा आपका इंतजार कर रहा है। If today, by hearing this message, if the Holy Spirit is speaking to you, the Word of God has spoken to you. Once again, if you want to dedicate your life, lift up your hands. अगर ये संदेश को सुनने के द्वारा से पवित्र आत्मा आपसे बात किया, परमेश्वर का वचन आपके मन को कायल किया, तो आप कितने हैं जो फिर से एक बार समर्पित होने का, प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेते हैं? अपने हाथ उठाए। I have closed my eyes. मैं अपने आंखों को बंद किया, मुझे नहीं मालूम कौन हाथ उठा रहा है। I don't want to see you. मैं तो आपको देखना भी नहीं चाहता, But let your God watch and see. लेकिन आपका परमेश्वर आपको देखने वाला हो सके। Lift up your hands अपने हाथों को उठाए, and you speak to the Lord. प्रभु से कहे, Open your mouth. अपने मुखों को खोले, Open your mouth and speak to the Lord. अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर से बातें And करें, you cry out to the Lord. प्रभु से पुकारे। You say your decision to your master today. आज अपने स्वामी से अपने निर्णय को कह दीजिए। Let your God hear your voice and your dedication, and he see your dedication. आओ, आपका परमेश्वर आपकी आवाज को, आपकी पुकार को, आपके समर्पण को सुनने वाला हो सके। Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। Lord, once again we commit our entire body into thy hands. फिर एक बार संपूर्ण देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, we don't know the heart of the students. प्रभु, विद्यार्थियों के मनों को हम नहीं जानते, Lord, we don't know their heart and their needs. We have no idea. उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकता है, उनके मन को हम नहीं जानते, But you are the shepherd, you are the God. लेकिन आप जलवा है, आप प्रभु हैं। Lord, today we answer you bless them. प्रभु, आज के दिन आप आशीषित करिए। Let them serve you, Lord. प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। Let the Holy Spirit serve you, Lord. प्रभु जी, ये प्रिय लोग आपकी सेवा में उतरने वाले हो सके। Let them dedicate themselves to serve your ministry, your name, O Lord. प्रभु जी, तेरी सेवा में, तेरे नाम के प्रचार में अपने आप को ये विद्यार्थी फिर से समर्पित करने वाले हो सके। Holy Spirit, हमसे बात करने के लिए तेरा धन्यवाद। thank you for everything.
यीशु के नाम से ये दुआ को मांगते हैं Amen. Thank you. Thank you. आमीन।